welcome students to Sumita's chemistry class of standard 8. Today we will start a new chapter, that is metals and non-metals, chapter 4. In short, whatever we use in our daily life can simply be classified into metals and non-metals. Now there is a question: how? Look at this pen. The ball point which we use is metal, but the ink without which we can't write is non-metal. Okay? Now introduction. Occurrence of metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, inert metals, corrosion of metals, alloys, uses of metals and non-metals. There are 118 elements known to us, out of which 92 elements occur naturally, means which are obtained from nature, while the rest are prepared by human. अब तक हम लोग 118 एलिमेंट्स जानते हैं या पता चला है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचर से पाया जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड बाय अस इन लैबोरेटरी, मीन्स लैबोरेटरी में बनाया जाता है, मैन मेड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर pure substances which are made up of one kind of atoms. This is called elements. Okay? Elements वो pure substance है जो one kind of single kind of atom से ही बना होता है. The elements are classified on the basis of their properties. The elements can be divided into 3 groups. What is the name of these groups? Metals, non-metals and metalloids. Before we go further and give the definition of metals and non-metals, we should know the meaning of some new terms such as malleable, ductile, luster, brittle, sonorous. So now what is the malleable? Malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheets. Malleable क्या होता है? Thin sheet में अगर मारने से जो फैलता है, this is without breaking, मतलब बिना टूटे वो थिन शीट में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेलिएबल. डक्टिल. डक्टिल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड, मीन्स ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर, जिसको स्ट्रेच करने से बहुत ज़्यादा लंबा होता है विदाउट एनी ब्रेकिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डक्टाइल. Luster. Luster means shining, means the quality of reflecting light from its surface. उसे हम लोग क्या कहते हैं? Luster या metallic shine. Brittle. Brittle means easily टूट जाना. Brittle means which breaks into pieces on hammering or stretching. हथौड़ा से, हैमरिंग मीन्स हथौड़ा से मारना, मारने से या स्ट्रेच करने से, खींचने से वो इजीली ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है मेनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल. सोनरस. सोनरस मीन्स विच मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टार्ट. जब हम लोग उसको कहीं पर भी स्टार्ट करते हैं, मतलब मारते हैं, तो उसमें रिंगिंग साउंड
प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस। ओके, नाउ मेटल्स। Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable, ductile. Metal are also lustrous, means shiny, hard, strong, heavy and sonorous. Examples: iron, aluminium, copper, silver, gold, zinc, lead, mercury and tin, etc. मेटल्स क्या होता है? मेटल्स वो एलिमेंट है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेलिएबल है, मीन्स नॉन ब्रेकेबल है, स्ट्रेचिंग होने से भी वो टूटता नहीं है, डक्टाइल है, लास्टरस है, साइनी है, सरफेस साइनी है, मेटालिक साइन है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, हेवी मटेरियल and also sonorous means ringing sounds. Clear? Now the non-metal. Non-metals are the elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile. They are brittle. Non-metals are non-lustrous. They have dull appearance. Non-metals are generally soft and not strong. They are light substance and non-sonorous. That means non-metals completely opposite in metals. Non-metals इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का पोर कंडक्टर होता है, ये ना मेलिएबल होता है, मीन्स ना ही ब्रिटल, डक्टाइल, क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स इजीली ब्रेक हो जाना, टूट जाना। नॉन मेटल अपीयरेंस जो होता है डल होता है, उस पर कोई मेटालिक साइन नहीं होता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग हार्डनेस नहीं होता है उसमें, काफ़ी लाइट वेट होता है, एंड नॉन सोनरस मीन्स कोई साउंड, मेटालिक साउंड, रिंगिंग साउंड इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। एग्जाम्पल्स: कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, now next is metalloids. Elements that have properties of both metals and non-metals are called metalloids or semi-metals. Metalloids किसे किसे कहते हैं? वो एलिमेंट जिसमें दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं या तो सेमी मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल: सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, जर्मेनियम, etc. Now, occurrence of metals and non-metals. Metals and non-metals कैसे नेचर में पाया जाता है? Metals occurs in nature in free, जिसे हम लोग नेटिव स्टेट भी कह सकते हैं, और कंबाइंड स्टेट। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। Seawater also contains salt of metals like sodium chloride, magnesium chloride, etc. Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur in free elements in nature. So most of the elements are found in the form of their compounds. Only a few less reactive metals like copper, silver, gold and platinum are found in the free state. Free state means क्या होता है? Free, freedom, अकेले रहना. And combined means combination, किसी के साथ में रहना या होना. तो free state as metal because of their low chemical reactivity. When a metal is found chemical reactivity as free elements, it is said to occur in native state. Means जो elements
लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सारे काफ़ी केमिकल रिएक्टिविटी काफ़ी लो होता है, मीन्स ये दूसरे के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है, दैट इज किसी एयर वाटर के साथ बहुत जल्दी इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो ये कौन सा स्टेट में रहता है? फ्री स्टेट में रहता है। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नेटिव स्टेट भी कह सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट्स कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। और कुछ एलिमेंट्स होता है जो अदर एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके नेचर से पाया जाता है, जैसे आयरन, कॉपर। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइंड स्टेट। उस एलिमेंट्स को हम क्या क्या बोलेंगे? कौन से स्टेट में रहता है? कंबाइंड स्टेट में, वो दूसरे के साथ कंबाइन होके। और फ्री स्टेट जो एकदम फ्रीली अपने आप को फ्री पाते हैं या पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द फ्री स्टेट। नॉन मेटल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ in the combined state as oxides, carbonates and phosphates. नॉन मेटल भी नेचर में एग्जिस्ट करता है अर्थ में, किसके साथ कंबाइन होके? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स। However, there are some non-metals that occurs in nature in the free state. और जो कुछ कुछ नॉन मेटल्स जो फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑकर इन फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर। मीन्स ऑक्सीजन दो स्टेट, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो दोनों ही स्टेट में नेचर में पाया जाता है। एक तो फर्स्ट फ्री स्टेट जो एयर में पाया जाता है, एंड सेकेंड द वाटर, इट्स अ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड मीन्स किसके साथ में कंबाइंड? H2O, ओके, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? सो ऑल द नोबल गैसेस ऑकर ओनली इन फ्री स्टेट, अदर देन जितना नोबल गैसेस होते हैं वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Metal exists in two states, in free state and in combined state. Examples in free states: gold, silver, platinum. Non-reactive element, a metal. And in combined state, sodium, calcium, potassium, these all are most reactive or highly reactive metal. Now the physical properties of metals and non-metals. Physical state. Most metals are solid at room temperature except mercury, which is a liquid metal. Name of the metals exist in gaseous state. Gallium also exists in liquid form at room temperature. Okay. Non-metal occurs generally as solids and gases except bromine. Bromine is a liquid non-metal at the room temperature. Physical state क्या है metals का? Metals means these all are solids, but except mercury. Mercury is also the metal, but it's a liquid form at the room temperature. और metals में कोई भी elements में जो metals कभी भी नेचर में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली सॉलिड्स। लेकिन उसमें से भी मरकरी एंड गैलियम जो है ये दो मेटल्स है जो लिक्विड में पाया जाता है। क्लियर? बट नॉन मेटल में क्या होता है? ये जनरली सॉलिड एंड गैसेस में पाया जाता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में एट द रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज malleability. Malleability is beaten into a thin sheet. This is the property by which metals can be beaten into a thin sheets or foils is called malleability. ये क्या है? कौन सा प्रॉपर्टी है? जो मेटल्स को हैमर से अगर हम लोग बीटिंग करते हैं तो वो थिन शीट में स्प्रेड कर जाता है या फॉइल्स में विदाउट ब्रेकिंग। लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर हम लोग
एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं। तो ये एल्युमिनियम फॉयल क्या है? दिस इज द ओनली द क्वालिटी ऑफ malleability, property of malleability. That's why the aluminum foil, it's so thin, and copper are highly malleable metals. Non-metals are non-malleable. They break into pieces when hammered, so they are brittle. Clear? Now ductile. Example, sulfur and phosphorus. Now the next is ductility. Metals, the property by which metals can be drawn into wires is called ductility. Gold, silver, copper and iron are highly ductile metals. Okay? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारा इस सब में जो प्रॉपर्टी पाया जाता है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी, जिसके कारण से गोल्ड सिल्वर का क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी के कारण से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम का क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। इसको स्ट्रेच करने से ब्रेक कर जाता है, सो दैट्स वाई नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। क्लियर? नाउ द luster means shiny appearance. The shining property of metals is called metallic luster. मेटल का जो शाइनी अपीयरेंस होता है या प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक लास्टर. इट इज ड्यू टू दैट दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस. और ये शाइनी अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि ये जो सरफेस होता है मेटल्स का उसमें रिफ्लेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सो दैट्स वाई ये इसका जो सरफेस है वो शाइनी होता है इंस्टेड ऑफ absorbing. Non-metals do not have a metallic luster except graphite and iodine. Non-metal metallic luster होता नहीं है, लेकिन इसमें से एक्सेप्शनल केस क्या है? ग्राफाइट एंड आयोडीन, बोथ आर द shiny appearance. Next, heat or thermal conductivity. Metals are good conductor of heat and electricity. We already know that. Silver and copper are the two best conductors of heat. Lead is the poorest conductor of heat. Bismuth, mercury and iron are also poor conductors. Non-metals are poor conductors of heat. However, graphite, which is a good conductor. मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसीलिए सिल्वर एंड कॉपर ये दोनों को हम लोग एज ए इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, स्पेशली इन कॉपर. सिल्वर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, दैट्स वाई हम लोग कॉपर का और एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. लेड ये सबसे ज़्यादा पोरेस्ट कंडक्टर है और बिस्मथ, मरकरी एंड आयरन ये भी पोर कंडक्टर है. नॉन मेटल कंप्लीटली पोर कंडक्टर्स है, बट उसमें भी एक्सेप्शन है ग्राफाइट, जो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. नाउ नेक्स्ट इज हार्डनेस. मेटल्स यूजुअली बीइंग सॉलिड इन नेचर आर हार्ड. For example, iron is very hard. Metals usually being solid, क्योंकि ये solid form में मिलता है तो naturally ये hard होता है. जैसे कि अगर हम लोग आयरन को लेते हैं तो आयरन का इसी हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स का जो ये हार्डनेस प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से आयरन को हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे लाइंस, मशीन्स ये सब में यूज़ करते हैं. उसके कौन से प्रॉपर्टीज़ के कारण? हार्डनेस प्रॉपर्टीज़ के कारण उसे हम लोग ये ब्रिज, रेलवे लाइंस, मशीन्स ये सब में यूज़ करते हैं. इस मेटल्स में जो सोडियम एंड पोटासियम है ये दोनों ही एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सॉफ्ट है एंड कैन बी कट इजीली विथ नाइफ. जिसे हम लोग ये इतना ही सॉफ्ट होता है कि जिसे हम लोग चाकू से भी
इजीली कट कर सकते हैं. नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. नॉन मेटल ये सॉफ्ट होता है क्योंकि ब्रिटल है, लेकिन इसमें डायमंड क्या है, ये भी नॉन मेटल ही है, ये एक्सेप्शनल केस है. ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. Now the melting and boiling point. Metals have high melting and boiling points. Tungsten has a high melting point. Sodium and potassium metals have low melting point. Gallium, cesium metals also have low melting point, while mercury has a low boiling point. Non-metal usually have low melting and boiling point. Graphite has a high melting point, while silicon and boron have a high boiling point. Metals have high melting and boiling point क्यों? क्योंकि metals मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. सो दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टेन का. सोडियम पोटासियम मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. गैलियम सीजियम मेटल्स का भी लो मेल्टिंग होता है. एंड मरकरी का क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट. दे आर एक्सेप्शन. जो लो है दैट इज एक्सेप्शन, like sodium, potassium, gallium, cesium melting point, and mercury it's a low boiling point. Non-metal usually low melting point boiling point होता है, लेकिन उसमें से जो ग्राफाइट है this is exception, it's a high melting point, and silicon and boron have a high boiling point. So these non-metals are exception, and these potassium, sodium, gallium, cesium and the mercury, these all are the exception of metals. Clear? Tensile strength. Now the first of all, what is the meaning of tensile strength? Tensile strength is the ability of a material to resist tearing. Metals generally have a high tensile strength and can hold large weights. Non-metals have low tensile strength and cannot hold large weights. Okay? Tensile strength मेटल्स का ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो कोई भी हेवी वेट को हैंगिंग पोजीशन में रख सकता है. लेकिन नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लो होता है, इसीलिए वो हैंगिंग कोई भी लार्ज वेट सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट्स को वो हैंगिंग पोजीशन में नहीं रख सकता है. नेक्स्ट इज डेंसिटी. सो व्हाट इज द डेंसिटी? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the relationship between the mass of the substance and how much space it take up. How much space is take up means volume. Okay. So now what is the properties of density? Now metals are usually heavy and high density, except lithium, sodium and aluminium. Metals का जो density होता है वो जनरली हेवी और हाई होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है लिथियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम, जिसका डेंसिटी काफ़ी लाइट होता है. दैट्स वाई हैव लो डेंसिटीज. सो दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन वाटर. सोडियम, लिथियम एंड एल्यूमिनियम का डेंसिटी काफ़ी लो होता है, जिसके कारण से ये वाटर में फ्लोट करता है, जिसके कारण से एरोप्लेन जो बनता है वो भी किस चीज़ से बनता है, एल्यूमिनियम से ही बनता है. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एक्सेप्ट डायमंड. नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी उसका लो ही है, लेकिन डायमंड एक्सेप्शनल है जिसका डेंसिटी हाई होता है. नाउ द नेक्स्ट इज सोनरस. मेटल आर sonorous. They produce sound when struck with hard materials. The exception are sodium and potassium. Non-metal are non-sonorous.
They do not produce sound when stuck with hard materials. Sonorous means रिंगिंग साउंड्स. मेटल्स सोनरस होता है, मीन्स इसमें जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम लोग कोई भी मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स में स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जब भी कोई सब्सटेंस में मटेरियल्स में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस मेटल्स है. नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होता है. उसका मतलब ये जब भी कोई हार्ड मटेरियल्स को स्टार्ट करता है जिसमें कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है तो दैट मीन्स ये सोनरस नहीं है. ओके. नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. Metals and non-metals. Metals are generally solid in state. Non-metals are found in solid and gaseous in state. Metals are lustrous. Non-metals generally are not lustrous. Metals are heavy. Non-metals are light in weight. Metals are hard. Non-metals are usually soft. Metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Metals are ductile and malleable. Non-metals are neither ductile nor malleable. Metals produce sound when stuck. Non-metals do not produce sound when stuck. Metals have high melting and boiling point. Non-metals generally have low melting and boiling points. Okay, students? Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update and video.